ہمیں فالو کرنا ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ بستر پہ، لڑکا بستر پہ یا آپ کے کپڑوں پہ پیشاب کر دے، اس پر پانی کی چیٹے مار لو، کپڑا پاک ہے، نماز پڑھ لو، جاؤ، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ کی بچی چھوٹی ہو اور وہ آپ کے کپڑے پہ پیشاب کر لے تو اس پر چھیٹا نہیں مارا جائے گا، بلکہ اس کو دھلا جائے گا، اور دھلنے کے بعد ہی وہ پاک ہوگا۔ لڑکے کے پیشاب کو چھیٹا مارنے سے پاک، لڑکی کا پیشاب دھوئے بغیر پاک نہیں۔ دونوں میں کیا مصلحت ہے میرے بھائیو؟ آج کی سائنس نے ترقی کر کے بتایا، لیکن اس زمانے میں تو سائنس نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول کا یہ حکم آج بھی ہے، ہمیں لڑکی کے پیشاب کو دھونا پڑے گا، لڑکے کے پیشاب پہ چھینٹے مارنا پڑیں گے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل ہماری گوارا کرے یا نہ کرے، لیکن فالو کرنا پڑے گا۔ یہی اسلام کا مزاج ہے، یہی اسلام کا نظام ہے، یہی اسلام چاہتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اسلام کے اصول اور اسلام کے قانون پہ چلنا چاہیے، چاہے وہ ہماری عقل کے خلاف ہو، چاہے وہ ہمارے عقل کے موافق ہو، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے نہیں۔ صبح سوتے رہے، ظہر میں جا کے نماز پڑھ لی، عصر میں پڑھ لی، مغرب میں پڑھ لی، عشاء پڑھی نہیں، سو گئے۔ رمضان کے روزے رکھ لیے، 5-6 رکھ لیے، 24-25 چھوڑ دیے۔ یہ رمضان کے 2-4 روزے، 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہو جائیں گے۔ ہماری اس مثال پر غور کیجئے گا میرے بھائیوں، ہماری اس مثال پر غور کیجئے گا۔ 2-4 نمازیں، 2-4 روزے اور 2-4 اچھے یا دینی کام کر لینے سے ہم پکے مسلمان نہیں بن جائیں گے۔ ہم چاہے کتنا اپنے آپ کو مسلمان کہیں، لیکن ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کے علاقے میں آم کا ایک درخت لگا ہوا ہے، آم کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے، اس پر آم لگے ہوئے ہیں، اس کے پتے لگے ہوئے ہیں۔ آم کے پیڑ کے بغل میں بجلی کا کھمبا لگا ہوا ہے، ابھی اس پہ بجلی کے تار دوڑے نہیں ہیں، ابھی دوڑائے جائیں گے۔ گاؤں میں بجلی آ رہی ہے، ابھی تار لگے نہیں ہیں، لیکن گورنمنٹ نے کھمبا بنا دیا ہے تاکہ یہاں پر بجلی کا پول بنا ہے، بجلی کے تار لگیں گے۔ اب یہ بتائیے، آندھی آتی ہے، اس مثال پر غور کر لیجئے، ایک آندھی آتی ہے، آندھی، اور جیسی آندھی آئی، ہلکی سی ہوا چلی، 5-6-10 پتے ٹوٹ گئے، 5-6-10 پتے آم کے پیڑ سے ٹوٹے اور وہ بجلی کے کھمبے پر چپک گئے۔ سمجھ گئے نا مثال؟ میں سوچ رہا تھا ان غباروں سے مثال دے دوں، لیکن یہاں بیٹھے کی نہیں۔ آم کے پیڑ سے 5-6-10 پتے ٹوٹے اور بجلی کے کھمبے پر چپک گئے۔ اب بجلی کے کھمبے کو آپ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ ایک مثال پر غور کر لیجئے، مجھے دوسری جگہ بھی نکلنا ہے، بہت زبردست مثال دے رہا ہوں۔ اچھا چلے، یہ جب چادر گھوم رہی ہے، آپ تھوڑا چم کے تعاون کر دیجئے، اتنا کر دیجئے کہ آج جلسے والے یہ کہہ دیں کہ واقعی مولانا صاحب آپ جو بولے لوگوں نے میرا منہ بھر دیا۔ حالانکہ جلسے والے کبھی یہ کہہ نہیں سکتے۔ 20 سال سے تو آج تک کسی مدرسے والے نے یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا چندہ ہوا ہے، آپ کی بات الگ ہے۔ آپ دیجیے، جم کے دیجیے، اور کم سے کم یہ سوچ کے دیجیے کہ جرجیت صاحب نے کہا آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ یوپی چھوڑوا دیا آپ نے ہمارا۔ دیکھ رہے یوپی میں ہمارے اوپر بینڈ لگ گیا، جب تک الیکشن چلے گا تب تک مولانا جرجیت کو یوپی میں بولنے کی پرمیشن نہیں۔ لیجیے صاحب، جلسہ بھی کرنے کی اجازت نہیں، یہ یوپی کے اندر بینڈ لگ گیا، ابھی پرسوں میرے گھر پہ نوٹس پہنچ گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ یہ حالات ہیں، اور آپ نے ہمیں اپنے گھر میں آ کے شرن دی، بنگال بلا لیا، اور بنگال میں پرچار تک ممتا کا کروا لیا ہم سے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری آپ اتنی بات مانتے ہیں اور اتنا قریبی اور اتنی محبت کرتے ہیں، تو یہ بچے جا رہے ہیں، بھر دیجئے ان کی جھولی، دامن بھر دیجئے۔ آپ کی 10 کی نیت ہے، میرے کہنے پر 50 دے دیجئے، 50 کی نیت ہے 100 دے دیجئے۔ آج یہ سوچ کر دے دیجئے کہ ہم جرجیت صاحب سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، اب آگے سنیے، اس درخت کے 10 پتے ٹوٹ کے بجلی کے کھمبے پر جب چپک گئے، تو کیا بجلی کے کھمبے کو اب آپ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ آم کا پیڑ؟ کیا بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کہلائے گا؟
ये मान लीजिए बिजली का खंबा है, आम का पेड़ पर पत्ते टूटे और इस पर गिर गए, इस पर चिपक गए, ये इस पर चिपक गए, तो अब क्या ये बिजली का खंबा आम का पेड़ बन गया? नहीं। आप कहेंगे साहब पत्ते तो हैं आम के उस पर, तो आम के चंद पत्ते चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता। उसी तरीके से 2-4 नमाज पढ़ लेने से, 2-4 रोजे रख लेने से, 2-4 रुपए का सदका और खैरात कर देने से आप पूरे के पूरे मुस्लिम नहीं हो सकते हैं। मैंने ये आयत इसीलिए पढ़ी, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे दाखिल हो जाए। पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब क्या है? आम का पेड़ पूरा का पूरा आम का पेड़ कब कहलाएगा? जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपने तने में भी आम हो, अपनी ब्रांच अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो और उसके अंदर फल भी आम का लग रहा हो, तब वो क्या कहलाएगा? आम का पेड़। आप पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल कब होंगे? जब आपका उठना भी इस्लामी हो, आपका बैठना भी इस्लामी हो, आपका चलना भी इस्लामी हो, आपका सोना भी इस्लामी हो, आपकी शादी, आपके निकाह भी इस्लामी हो, आपकी नमाजें भी इस्लामी हो, आपका ओढ़ना और बिछोना इस्लामी हो, आपके हर सांस में इस्लाम घुसा हुआ हो, तब आप पक्के और सच्चे मुस्लिम कहलाएंगे। आप अपने जड़ में भी इस्लामी हो, अपने तने में भी इस्लामी हो, आपकी ब्रांच भी इस्लामी हो और जो पत्ते हैं वो भी इस्लामी हो और फल भी अगर लग रहा हो तो इस्लाम का फल लग रहा हो। मेरे भाइयों, यानी आपसे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी इस्लामी हो। ये है इस्लाम। जिस तरीके से आम बिजली के खंबे पर आम के 2-4 पत्ते गिर जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता है, उसी तरीके से 2-4 नमाजें पढ़ लेने से हम मुसलमान पक्के सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते हैं। पक्के सच्चे बनिए। कुरान ने कहा उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। एक और मिसाल, जब बच्चा 7 साल का हो जाए, नमाज न पढ़े तो उसको नमाज के लिए ले जाओ, उंगली पकड़ के चलाओ, उसको नमाज का पाबंद बनाओ। जब बच्चा 10 साल का हो फिर भी नमाज न पढ़े तो उसको मार मार के मस्जिद में ले जाओ, फज़रिबूहुम, उनको मारो। 10 साल के बाद बच्चे को पीटने का और मारने का हुक्म है नमाज के लिए, अगर वो नहीं पढ़ता तो उसको मारो। इसका मतलब ये कि 7 साल का बच्चा गलती कर सकता है, कभी पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ेगा। 8 साल का बच्चा भी कभी पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ेगा। आप उस पर जबरदस्ती मत करना। हाँ, उसकी आदत बनवाना, उसकी आदत डलवाना, फजर में उठाना, कभी सो जाए सोने देना, हाँ फिर उसको आदत बनाना। लेकिन 10 साल तक, 7, 8, 9, 10, ये 4 साल तक जब आपने उसकी आदत बना दी तब फिर 10 साल के बाद उसकी ऊपर माफ नहीं है। फिर अगर न पढ़े तो उसको मार मार के ले जाओ। यानी वो छोटा है, उसकी गलती माफ की जा सकती है, लेकिन 10 साल के बाद उसकी गलती माफ नहीं की जा सकती है। उसको नमाज पढ़ने जाना है, हर हाल में जाना है, न पढ़े तो बाप का ऑर्डर है कि वो मारेगा। मेरे भाइयों, इस्लाम लाने से पहले हमने जो गुनाह किए हैं वो माफ हैं। इस्लाम लाने के बाद अब आपको सोच समझ कर कोई कदम उठाना है। अब आपका हंसना भी इस्लामी होना चाहिए, रोना भी इस्लामी होना चाहिए। आप जो अपनी जबान से बोल रहे हैं, माँ की गाली हो, बहन की गाली हो, या बेटे की गाली हो, या झूठ हो, या जो चीज भी हो, या हम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा ही क्यों ना कर रहे हो, इतना याद रखिएगा, आप अपनी जबान से जो बोल रहे हैं वो इस हवा में नहीं उड़ रही है। आप याद रखिएगा, आप अपनी जबान से जो कुछ निकाले हैं, चाहे गाली हो या कलमा, वो इस हवा में नहीं उड़ रहा है, उसको फरिश्ते लिख रहे हैं, वो रिकॉर्ड है। अगर तुम्हारे मुंह से गाली लिखी है तो बाएं कांधे का फरिश्ता उसको रिकॉर्ड कर रहा है। तुम्हारे मुंह से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकला है तो उसको दाएं कांधे का फरिश्ता रिकॉर्ड कर रहा है। तुम्हारे मुंह से जो कुछ भी निकला है वो हवा में नहीं उड़ रहा है, वो रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है, ये मत सोचिएगा कि वो हवा में उड़ रही है, बस निकली मुंह से खत्म, नहीं, वो रिकॉर्ड है। और कयामत के दिन, जैसे आज 10 साल पहले हम क्या बोले, आज जर्जी साहब झुठला रहे, नहीं हमने वो सब नहीं बोला था, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने 10 साल की तकरीर हमें मोबाइल पे सुना दी। देखिए, जैसे आप रिकॉर्ड कर लेते हैं ऐसे अल्लाह के पास रिकॉर्ड तैयार है हमारा।
झुठला नहीं सकता आदमी। गलती माफ करने की एक सीमा होती है। बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है, नर्सरी में, तो उसको पेंसिल दी जाती है लिखने के लिए, LKG में पेंसिल दी जाती है लिखने के लिए, UKG में पेंसिल दी जाती है लिखने के लिए, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ में, फिफ्थ तक पेंसिल दी जाती है उसको लिखने के लिए, और साथ में रेजर होता है, रबर होती है। गलती करता है तो मिटाई जाती है। उसकी टीचर बताती नहीं बेटे ऐसे नहीं, A ऐसे बनाओ, B ऐसे बनाओ, फिर उसको गलत बनता है, उसको मिटाती है। लेकिन जब वही बच्चा 5th क्लास पास करके 6 में आता है, 7th में आता है, 8 में आता है, तो उस बच्चे को फिर पेंसिल और रेजर नहीं दिया जाता, बल्कि पेन दे दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है अब तुम मंझ चुके हो, गलती करने की तुम्हारी उम्र जा चुकी है, अब तुम्हारे हाथ में पेन है, अब जो कुछ भी लिखना है सोच के लिखना, क्योंकि जो लिखोगे वो मिटाया नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, एक मुसलमान इस्लाम का कलमा पढ़ने के बाद उसका उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, शादी, ब्याह, हर चीज बड़ी सोच के होनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ जो गलती करेगा वो मिटेगी नहीं, उसको फरिश्ते लिखने वाले हैं। गलती करने की उम्र तुम्हारी निकल चुकी, गुनाह करने की उम्र निकल चुकी। 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल तक, जब तक तुम 9 साल के थे तुम्हारी गलतियां मिटाई जाती थी, लेकिन अब तुम बालिग हो चुके हो। अब तुम जो भी कर रहे हो, अगर एक भी आतिशबाजी, बारात में एक भी आतिशबाजी छूटी तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर बारात में एक लड़की की भी वीडियो फिल्म बनी तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। दूल्हा और दुल्हन की रिकॉर्डिंग हुई तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। बारात में अगर तुमने मर्दों के साथ औरतों को एक ही बस में बिठा कर ले गए और औरतें लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर लगा कर मर्दों के साथ में बैठी, तो ये गलती मिटेगी नहीं, ये दर्ज हो जाएगी, जो तुम्हारे कंधे का फरिश्ता इसको नोट करेगा। और याद रखिएगा कि पूरी शादी की जो वीडियो रिकॉर्डिंग दूल्हा और दुल्हन की हो रही है, ये तुमसे सवाल होगा, पूछा जाएगा। ये गलती जो तुम कर रहे हो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि जो कर रहे हो वो मिटने वाली नहीं है। हमें और आपको इस्लाम लाने के बाद हर कदम बड़े सोच समझ के करना है। हजरत अबू बकर को एक बार हजरत उमर ने देखा कि वो अपनी जबान पकड़े हैं, ऐसे जबान पकड़े हैं और कान से मिसवाक निकालकर उस जबान को मार रहे हैं ऐसे। हजरत उमर ने कहा ये क्या हो गया है, आप पागल हो गए हैं क्या, आपका दिमाग खराब हो गया है, जबान निकालकर मिसवाक से मार रहे हैं। हजरत अबू बकर कहते नहीं, मैं इस जबान को सजा दे रहा हूं, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है इस जबान की वजह से बहुत से लोग जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाते हैं, इस जबान का एहतियात नहीं बरतते इसलिए जहन्नम में दाखिल कर दिए जाते हैं, इसलिए मैं इसको आज सजा दे रहा हूं ताकि इसके मुंह से जब भी जो चीज निकले वो सही निकले, गलत नहीं निकले। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाल है, जो जबान पर अपनी मिसवाक से उसको चोटें दे रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं कि तेरे मुंह से कोई चीज गलत नहीं निकलनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मैं यज़मली, जो मुझे 2 चीजों की जमानत दे दे, 2 चीजों की जमानत दे दे, हम उसको अज़मन लहुल जन्नह, हम उसको जन्नत की जमानत देते हैं। और 2 चीजों में आपने क्या फरमाया, अल-फमू, पहली चीज जबान और दूसरी चीज शर्मगाह, वल फर्ज, अल फमु वल फर्ज। 2 चीजों की जमानत तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। तुम अपनी जबान का सही इस्तेमाल करो और अपनी शर्मगाह का सही इस्तेमाल करो तो हम तुम्हें जन्नत की जमानत देते हैं। यही इस्लाम है मेरे भाइयों, और इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे हमें और आपको दाखिल हो जाना चाहिए। हमें निकलना है दूसरी जगह भी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बार अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीन मुसलमानों पर रहम फरमा। बार अल्लाह जिस मकसद से ये चंदा, ये जलसा किया गया उस मकसद में कामयाबी अदा फरमा। अल्लाह ये इदारा तो यहाँ कायम किया गया है, इस इदारे को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमा, और यहाँ से दीन की तालीम की इशाअत हो और दीन की तालीम हर घर पहुंचे। अल्लाह इन लोगों से दीन की जो खिदमत ले रहा है इसको कबूल भी फरमा ले। जब तक तो हमें जिंदा रह, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जो हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।